Good morning, dear children. Today we start here new chapter of class 6 maths, and this chapter is understanding elementary C. So, dear children, in the last chapter, ray line segment, and a line, and how we measure. But in this chapter, we know here about the angles. How we measure the angle, how many degrees are angle, how many types of angle. So dear children, first I will tell you here how many types of angle. So dear children, first is an acute angle. Acute angle. Second is an obtuse angle. Third is a right angle. Fourth is a straight angle. Fifth is a reflex angle, and sixth is a complete angle. Okay. Now first I will tell you acute angle. Acute angle is less than 90 degree. Suppose this is a figure, and this is the center point. Okay, and here this is the center point, means when we draw this line, so this is the radius of the circle, but 90 degrees, this type is a 90 degree, means 90 degree equal right angle. 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो कौन सा होता है एंगल? राइट एंगल होता है. बट लेस देन 90 डिग्री मींस यदि आपने इस साइड से मेजर किया है, मींस आपने प्रोटेक्टर, दिस इज योर प्रोटेक्टर, और प्रोटेक्टर का आपने जो ये सेंटर पॉइंट होता है, इस पॉइंट पे यदि आपने यहाँ पे रखा है, यहाँ पे, तो आपकी ये लाइन इंक्रीज इधर हो रही है. तो मींस आपने इधर से काउंट करना स्टार्ट किया, तो 90 डिग्री से लेस देन 90 डिग्री मींस आपके यहाँ कहीं भी हो सकता है, वो कहलाता है एक्यूट एंगल. मींस a degree was less than 90 degree. Okay. Obtuse angle is a more than 90 degree. Means this is a 90 degree angle. So more than 90 degree means this type. Here to here. Means यहाँ से लेके यहाँ, इस लाइन से लेके यहाँ तक. Means more than 90 degree is obtuse angle. Right angle is just I told you this type. This is a right angle. ये आप ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है. मींस आप कैसे भी, बट ये 90 मींस इनका मेजर कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए. फोर्थ इज स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल इज बिल्कुल स्ट्रेट, इस जैसे आपको नेम से ही पता चल रहा है. स्ट्रेट एंगल मींस बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन, दिस टाइप. दिस इज अ स्ट्रेट एंगल. Straight angle means 180 degree. Straight angle is a 180 degree. And reflex angle. What is reflex angle? Reflex angle is more than 180 degree but less than 360 degree, means less than complete angle. So, suppose this is the center point of this angle. So, here means यहाँ से लेके यहाँ तक. This is a reflex angle. Okay, AOB is a reflex angle. Why? Because this is more than 180 degree. कैसे? यहाँ से ये पूरी लाइन जो है ये 180 डिग्री है, और इधर का जो ये है ये क्या कहलाता है? More than 180 डिग्री. 180 तो यहाँ तक हो गया. अब इसके इधर का एक्स्ट्रा है तो 180 से ज्यादा हो गया, इसलिए ये रिफ्लेक्स है. And complete angle is a, what is a complete angle? Just like a circle. ये आपका complete angle कहलाता है. This is a complete angle, and complete angle is a 360 degree. How many degree? 360 degree. Okay. So this is a complete angle. Suppose look at here. Your protector is 180 degree. So this is your protector, and second protector put here
this time. So 180 degree this angle and 180 degree this angle. So this is a circle, just like a circle. Okay. So 160 plus 180 plus 180 equal 360. Okay. So this is your angles. Now next is, suppose this is a clock. Now look at here. This is a clock 12, 6, 3, 9. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. And this is your center. Okay. Now look at here. Here this is your hour hand and this is your minute hand. How many, which type of this angle? This is a straight angle, because 12 and 6, 12 और 6 जो है बिल्कुल एक दूसरे के नीचे ऊपर रहते हैं, तो वो कौन सा एंगल कहलाता है? 180 डिग्री का एंगल, सॉरी यस, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। बट क्लॉक का बताने का मीनिंग हमारा ये है कि क्लॉक से कौन सा एंगल कितने डिग्री का बनता है। जैसे 12 से मिनट है, यदि आपका 3 में हो तो 90 डिग्री का, ठीक। यदि यहां हो तो भी 90 डिग्री का बनता है। बट यदि मिनट हैंड यदि आपका 1 में हो तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? क्योंकि 12 के बाद 1 आता है, 2 आता है, फिर 3 आता है, 3 में तो 90 डिग्री का, तो 1 में यदि है तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? तो बेटे डियर चिल्ड्रन, यहां पे आप जानते हैं कि ये एक सर्कल है और एक सर्कल जो है वो कितने डिग्री का एंगल है? कंप्लीट एंगल है, मींस 360 डिग्री का एंगल है। तो जब 360 डिग्री का एंगल है कितने पार्ट इसमें? 12 पार्ट्स हैं। तो इसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे, तो 12 3 जा 36 एंड 1 0 यानी 30, यानी 1 जब 12 से 1 में पार्ट आएगा आपका हैंड्स आएगा, तो ये किसमें कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 30 डिग्री का। क्यों 30 कैसे है? क्योंकि ये पूरा हम जानते हैं 360 डिग्री का एंगल है और 360 डिग्री को 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 12 इक्वल पार्ट्स, क्योंकि 1 2 इनके बीच में 5 मिनट्स होते हैं, तो सब इक्वल होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि किसी में 5 मिनट हो किसी में 6 मिनट हो, ऐसा तो होता नहीं है, इक्वल होते हैं 5 5 5 5 5 मिनट्स। सो ईच नंबर हैविंग 30 डिग्री। हाउ मेनी डिग्री? 30 डिग्री, बिकॉज this is a 30 degree angle, 360 degree angle means complete angle, and this 360 degree is divided into 12 equal parts, then each part is 30 degree, each part is 30 degree, okay, means 30 ये आया, जब यहाँ जाएगा मिनट हैंड तो 60 हो जाएगा, यहाँ मिनट हैंड जाएगा तो 90 हो जाएगा, यहाँ मिनट हैंड जाएगा 120 हो जाएगा, यहां जाएगा मिनट है 150 हो जाएगा और यहां जाएगा 180 हो जाएगा। ओके, बट अब सपोज मान लीजिए इनके बीच में भी 1 2 3 4 5 लाइंस हो। अब इनके बीच में यदि फर्स्ट सेकंड में जाया मिनट हैंड गया तो कितने डिग्री का एंगल? तो देखिए जब इसको, अब आप इसको कई प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो आप ये काउंट करेंगे टोटल होते कितने हैं? टोटल होते हैं 60। ये कितनी लाइनें होती हैं? 60 लाइंस होती हैं। हाउ मेनी लाइंस? 60 लाइन मींस 60 सेकंड इक्वल 1 मिनट। ओके, तो 60 मींस ये टोटल कितना है? 360। टोटल सेकंड कितने हैं? 60 मींस इनको यदि हम मिनट को ना काउंट करें 5 को, इनको काउंट करें मिनट्स को, तो इनको 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। कितने इक्वल पार्ट में? 60 इक्वल पार्ट्स। सो ईच पार्ट इक्वल 6 1 6 6 6 36 इक्वल 6 डिग्री। ईच पार्ट हैविंग 6 डिग्री एंगल मींस जो यदि मिनट हैंड 1 में 12 के बाद 1 सेकंड या 1 मिनट में गया तो आपका ये 6 डिग्री का एंगल बनाएगा। दूसरा इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं कि जब ये 1 में जाता है तो
तो 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो इनको कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है? 5 इक्वल पार्ट्स। तो 30 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल 6 डिग्री एंगल। ओके, सो डियर चिल्ड्रन, दिस इज योर एंगल। और एंगल्स के बारे में हम आपको आगे और बताएंगे। जैसे भी एक्सरसाइज आते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे कि हम एंगल्स को कैसे मेजर करते हैं, कैसे बनाते हैं, जैसा भी। ओके, नाउ वी गो टू द फर्स्ट, वी गो टू द एक्सरसाइज ऑफ 11b। हियर fill in the blanks. So first question is the unit of measurement of an angle is। हम किसी भी मेजरमेंट का जो यूनिट, जैसे अभी हमने मेजर किया किसी भी एंगल को, वो क्या होता है? डिग्री कहलाता है। क्या कहलाता है? डिग्री। सो वी राइट मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज डिग्री। जैसे हम कोई लिखते हैं 30, ये क्या होगा? ये 30 नहीं, जब इसके ऊपर एक पॉइंट लगा दिए इस टाइप, ये हो गया 30 डिग्री। ओके, सो जब हम मेजर करते हैं तो क्या कहलाता है? डिग्री। नाउ सेकंड एंगल इज वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ अ लाइन अबाउट अ पॉइंट इज इक्वल टू डैश डिग्री। One complete rotation, just I told you here, one complete rotation, just like a circle, then one complete rotation is how many degree? 360 degree. So this we write here 360 degree, complete angle. Now third is the angle between the north direction and east is degree, is dash degree. अभी हमने आपको क्लॉक बताया था। Where is this in here, this is east, west, north and south. So east and west, this is the north. So one direction, north direction and east, this is north and this is east. So this, if we draw this type of line, so how many degree angle? This type, this is a 90 degree angle, right angle. Okay, so we write here 90 degree. Now, what is the angle between the hand of the clock at 6 o'clock? Just I told you here, 6 o'clock. जब आपका 6 o'clock होगा तो वो किस टाइप का एंगल बनेगा? तो जब 6 o'clock होगा तो एक मिनट हैंड आपका कहाँ होगा? मिनट हैंड आपका कहाँ होगा? एक आवर हैंड कहाँ होगा? 6 में। और मिनट हैंड कहाँ होगा? 12 में। तो जब 12 एंड 6 बिल्कुल अंडर नीचे एक दूसरे के होते हैं, ऊपर नीचे, तो कितने डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री एंगल। ओके, नाउ द लास्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 इज द मेजर ऑफ द एंगल व्हेन द मिनट हैंड मूव्स बाय 1 मिनट इज इक्वल टू डैश डिग्री। अभी जस्ट आई एक्सप्लेन यू कि जब हमने क्लॉक बनाया तो जब हम 3 में जाते हैं तो 90 डिग्री होता है, बट वो तो 15 मिनट हो गए, बट 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल होगा? तो 1 मिनट इक्वल मींस उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 60, बिकॉज़ 1 आवर इक्वल 60 मिनट, देन 300 एंड 1 आवर इक्वल पूरा एक राउंड इक्वल 360 डिग्री। सो द 360 डिवाइडेड बाय 60 इक्वल 6 डिग्री। So we write here to 6 degree. Okay, so the first question is completed. Now the next question, question number 2. Now dear children, question number 2. In the given figure, a circle is divided into 4 equal parts. Here parts are the line AOD, AOC, POC, POD. How many times is the angle AOB and AOC? So how many times? 2 times. Okay. Now the question number 3. See the figure. The circle is divided into 16 equal parts. Find 16 equal parts. Here we find here. This is the center point. The name of the center is O. And here A1, A2, A3, A4, A9, A10, A16, 13, 14, 15 and 16. Okay. Now here angle A1, AO, A2 means A1, A2. How many degree
एंगल मीन्स आपको यहाँ पे ये कितने डिग्री का एंगल है आपको बताना है। तो डियर चिल्ड्रन, दिस इज अ 360 डिग्री, दिस इज अ कंप्लीट एंगल। सो कंप्लीट एंगल इज अ 360 डिग्री. It is divided into how many parts? 16 parts. So when we divide it by 16, then your answer is 22.5 degree angle. Okay, so we write here 22.5 degree angle. Now next A1 AO3 means यहां से ये कितने डिग्री का एंगल होगा? तो अब आपको इसको मेजर करना है, यहां से इसको कितने पार्ट में डिवाइड करें? AO3 1 मिनट. यस, तो हाउ मेनी डिग्री? 45 डिग्री. हाउ मेनी डिग्री? यस 45 डिग्री. नाउ दिस यहां से लेके यहां तक. नाउ थर्ड इज A1 O A5. A1 here and A5 here. ये कितने डिग्री का एंगल है? ये 90. क्योंकि यहाँ पे हमने मेजर करके नहीं बनाया है, आप थोड़ा मानिए, ये बिल्कुल कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है. ओके, नाउ देखिए यहाँ पे देखिए ये मिडिल में है, तो जब ये 90 डिग्री का एंगल है तो इसका जो ये हाफ होगा, तो यहाँ से ये और ये 45 डिग्री 45 डिग्री. ओके, तो इसीलिए ये 45 डिग्री का है. Now angle AO812. How many times? Question number 3. Yes. Question number 4 is how many times is the angle A1O812 of the angle AO2? So यहाँ से AO12 तक कितने टाइम्स है? तो कितने टाइम्स है? 11 टाइम्स एंगल. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Okay, how many times? 11 times. Now question number E. How many times is the angle A1 AO A4 of the angle AO2? Angle A1 O A4 to AO2. How many times? So 3 times. 1 2 3 times. Okay, so we write here 3 times. Now the question number 5 is AO A5 equal what fraction of the whole revolution is the angle? This angle. Okay, to 1/8 fraction. How we find the 1/8 fraction? क्योंकि यहाँ पे पूरे का एक होल रेवोल्यूशन का पूरे एक चक्कर का बता रहा है, तो हम इसको पूरे एक चक्कर को पार्ट में, इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड किया. तो कितने पार्ट आए? आप देखिए यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से ये लाइन छोड़ा, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट आया. अब इस 8 पार्ट में, सॉरी यहाँ 5 to 7 दिया है. 8 पार्ट में ये पूछा है 5 और 7. दिस इज अ 5 एंड दिस इज अ 7. तो ये कौन सा पार्ट है? 1/8. टोटल नंबर ऑफ पार्ट इज 8. सो वी राइट हियर डिनोमिनेटर 8 एंड दिस इज अ 1 पार्ट. सो वी राइट हियर 1. यदि हम इसको 8 पार्ट में डिवाइड करके इस बॉक्स को हम साइडेड कर दें, तो हम फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? 1/8, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पार्ट इज 8 and one box is saided, so 1/8. So we write here 1/8. Okay, so dear children, question number 3 is completed. Now the next question I will tell you in the next video. Okay, thank you.